Good evening, friends. Today I'm going to provide you the another video of biology. It's related to the chapter pollination and fertilization, and I already taught you the different kinds of pollination, self-pollination, cross-pollination. What are the agents related to the pollination, और कैसे क्या क्या terms है, like if we say that in case of the insects pollinated plants are called entomology. If we say that in case of the wind pollinated trees, anemophilus, hydrophilus, water pollinated plants. तो ये थोड़े से terms आप learn कर लीजिएगा. Now next one is the some example of the pollination. In insects pollinated sweet pea. Sweet pea किसको कहते हैं? मटर के पौधे को. The insects such as the bee alight on the conspicuous corolla. The bee thrusts its long tongue in search of nectar. In this struggle, the wing petal of the flowers are depressed. जो pea flower होता है इसमें 3 types petals होता है. The outer one is known as the standard petals like this. Second one, the inner one, second inner one, it is known as the wing petals, and the last inner one, this is known as the heel petals. And the arrangement of the anther and stigma is like that here. आपको एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ यहाँ पे कि ये अरेंजमेंट जो एंथर्स की होती है 9+1 एक साथ सारे ग्रुप में, एंड द वन इज़ अ सिंगल आउटसाइड, एक अलग से होगा. तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा चुकी हूँ. आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. क्लियर? सो here it is. Wing petals along with the keel petals are forced down to the stamen and stigma touch the underside of the body of the insects. तो जो ये वाले पेटल्स होते हैं ये फोर्स करते हैं स्टेमन एंड स्टिग्मा को कि ये इंसेक्ट्स की बॉडी से टच हो जाए फॉर द पॉलिनेशन. इट मीन्स ये हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए. इफ़ दिस इंसेक्ट हैज़ ऑलरेडी विजिटेड अनदर फ्लावर इट मे हैव सम पॉलन स्टिकिंग ऑन इट्स बॉडी. और अगर ये किसी और फ्लावर से विजिट करके आए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बॉडी में भी पॉलन स्टिक होंगे. द पॉलन इज नाउ ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ दिस न्यू फ्लावर दस अफेक्टिंग pollination. When the insects fly away, it may in turn carry some pollens of this flower to other similar flower. However, if cross pollination does not take place, there is every chance of this self pollination. Means same plant में भी क्या हो सकता है, same pollination हो सकता है through the insects also. In this case, since both of the stamen and carpels are enclosed within the keel and are more or less at the same level, तो ये ज़्यादा करके या कम करके क्या हो सकते हैं, ये एक सेम लेवल पे हो सकता है. Now I'm going to show you the structure of the pea flower. यहाँ पे कैसी अरेंजमेंट है आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा. बिकॉज here the stamen is 9 in a one group. ये नंबर्स में 9 and 1 कंप्लीट 10 होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है ये सारे ग्रुप्स के अलावा. And you can see that easily here. This is the stigma and style is here and the inside here is the ovary. इसके अंदर ovary होगा, लेकिन ये एंथर जो होते हैं ये सारे एक ग्रुप में होते हैं. This is the pollen grain and ovary. This one is the stigma and ovary is here. Clear? Now the another one is the maize. Wind pollinated, it is maize. Pollination is brought about by wind. As the wind blows the pollen from the outwardly hanging anthers in the tussle. टशल आपको दिख रहा है, ये एक तरीके का यहाँ पे क्या सबसे टॉप में आपको दिखेगा. ये एक बहुत झाड़ सा भी नहीं बोलूँगी इसको, कुछ अलग से ही होता है. तो इसमें ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिन्स यहाँ पे स्टिक रहते हैं, लूजली स्टिक रहते हैं. लूजली बहुत मतलब इसलिए कि विंड से पॉलिनेशन हो जाए. अटैच टू द फिलामेंट दैट द स्लाइटली विंड विल शेक देम. तो इसलिए रहते हैं कि इजीली जो विंड होगी वो क्या कर सकते हैं, उनको हिला सकती है और उनको ले जा सकती है यहाँ से. द pollen blown away by the wind may fall on the feathery stigmas of the female flower which have a large surface for this purpose. और ये क्या होता है कि या तो फिर सेम फ्लावर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैला रहता है जो स्टिग्मा होता है, बिकॉज ये जो पॉलिन्स होते हैं ये इजीली इस सरफेस तक पहुंच जाए, इसी के लिए. द मेल फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल वन. नाउ हियर इज़ अ वन क्वेश्चन फॉर यू. आई ऑलरेडी मार्क्ड द क्वेश्चन कि द मेल फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल वन. दिस इज़ द आंसर. आंसर क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. सो दैट देर आर लेस चांसेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे इनकी मैच्योर जो होते हैं, जो मेल फ्लावर है, इट्स अर्लियर देन द फीमेल वंस. तो ये कंडीशन क्या कहती है इसको आपको ये बताना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी दैट द मेज प्लांट्स हियर. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेल इन्फ्लोरेंस जो है ये टसल्स के फॉर्म में होता है, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉलिन्स स्टिक रहते हैं, लूजली स्टिक रहते हैं, अटैच रहते हैं, जिससे कि विंड इनको ईजिली क्या कर सके, कैरी कर सके.
और यहाँ पे फीमेल इन्फ्लोरेंस है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये इतना ब्रॉड मतलब फ्लैटेंड होता है जो ये चीज़ें, बिकॉज इट कैन बी कैरी, इट कैन बी ईजिली होल्ड दीज पॉलिन। अगर ये विंड्स के थ्रू अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे शेक होता है और ये पॉलिन्स इधर उधर गिरते हैं तो ये उसको ईजिली कैच कर ले, ठीक है। तो द सेल्फ पॉलिनेशन भी ऑल्सो टेक्स प्लेस हियर। नाउ इन केस ऑफ द प्रोग्रेस चेक, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही बता दूँ। मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। जस्ट आई वांट टू चेक हिज एनी टर्म्स लेफ्ट और नो, कुछ है यहाँ पे। यस, यू हैव फर्टिलाइजेशन। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ेंगे अभी, बट फिलहाल अभी मैं यहीं तक आपको आज ही फिनिश करवाऊँगी। फेदर स्टिग्मा हैंगिंग आउट, अभी हम मेज में पढ़ रहे थे, तो ये किसके थ्रू पॉलिनेटेड होता है? विंड पॉलिनेशन। क्लियर? तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ फर्स्ट। डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द एंथेरल स्टिग्मा, मैं आपको भी बता ही रही थी। डिफरेंट टाइमिंग को क्या कहेंगे? डिचोगैमी, इट इज़ सेकेंड वन। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है कि अगर एंथर पहले मैच्योर हो रहा है कंपेरिजन टू फीमेल वंस के, तो आपको ये देखिए ये वाला टर्म्स अलग होगा। पॉलिनेशन बाय एलिफेंट, रफ्लेशिया एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है जो कि एलिफेंट के फीट से टच होकर के ये पॉलिनेटेड होता है। क्लियर? फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, इट इज़ एंटोमोफिलस। दिस इज रिलेटेड टू दी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू दी इंसेक्ट्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक में देख लेते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तो श्योरली इट विल हेल्प यू अ लॉट। हाँ, यहाँ पे भी है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन। द टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन द फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज एंड सोवी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो देयर इज नो नीड टू बी कि फ्लावर को बहुत लार्ज और सोवी होना चाहिए। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंथर एंड स्टिग्मा मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज़, ये एक बहुत ये डिसएडवांटेज कहेंगे इसके लिए। हमने पढ़ा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इन क्रॉस पॉलिनेशन देयर इज मच वेस्टेज ऑफ पॉलिन एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे वन लाइनर के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वी कैन सी दैट हियर फर्टिलाइजेशन आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको बहुत क्लियर करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा एंड कन्फ्यूजिंग टू, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ आपको क्लियर करवा दूँगी। होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू। जो अभी मैंने आपको बताया आप इसको रीडिंग करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्प इससे हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।